پاکستان کے دورے پر آئے ہوئے IMF کے وفد سے کہا ہے کہ وہ $7 ارب کے EFF پروگرام کے لیے اپنی ان شرائط کو ہٹائے جن کے تحت حکومت جنوری 2025 سے کیپٹیو پاور پلانٹس کی بجلی منقطع کرنے کی پابند ہے۔ اعلیٰ حکومتی عہدیداروں نے IMF کے مشن کی سربراہی کرنے والے IMF مشن کے سربراہ نیتھن پورٹر سے درخواست کی ہے کہ ایسے بجلی گھروں کو گیس کی فراہمی منقطع کرنا اور انہیں جنوری 2025 سے قومی گرڈ کو بجلی گھروں سے جوڑنے سے $400 ارب کی آمدن کا نقصان ہوگا۔ پنجاب میں اسموگ کا زور کم نہ ہوا اور لاہور آج بھی دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں سر فہرست۔ خراب فضائی معیار باعث لاہور میں صبح کے اوقات میں ایئر کوالٹی انڈیکس 710 ریکارڈ کیا گیا۔ پنجاب کے آلودگی کے متاثرہ شہروں میں رحیم یار خان میں پارٹیکولیٹ میٹرز 826 پر آ گئے جبکہ ملتان میں 710 ریکارڈ کیا گیا۔ دوسری جانب لاہور میں شدید دھند کے باعث ایئرپورٹ کینٹ اور اطراف میں حد نگاہ 0 ہو گئی جبکہ موٹر وے M2 اسلام آباد سے لاہور، M3 لاہور سے درخانہ اور M4 پنڈی بھٹیا سے ملتان، M5 ملتان سے جلال پور، M11 لاہور سے کاموکی اور لاہور سیالکوٹ موٹر وے مکمل بند کر دی گئی۔ اس کے علاوہ آج اور کل لاہور راولپنڈی کے KP اور پنجاب کے بالائی اضلاع میں بارش متوقع جس سے اسموگ میں کمی کا امکان۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت پر آج ملک بھر میں نماز استسقاء کا اہتمام کرنے کا سرکولر جاری کر دیا گیا۔ وزارت مذہبی امور کی جانب سے وفاق اور صوبائی سطح پر نماز استسقاء کے اہتمام کی ہدایت کی گئی۔ چاروں صوبوں گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے سیکریٹری اوقاف کو اس حوالے سے عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ وزارت مذہبی امور کی جانب سے کہا گیا ہے کہ خشک سالی سے ملک میں صحت اور اسموگ کے مسائل ہیں۔ مساجد کے امام اور عوام نماز استسقاء کا لازمی اہتمام کریں۔ وزارت مذہبی امور کی جانب سے کہا گیا ہے کہ عوام اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے ہوئے باران رحمت کی دعا کریں۔ اس سے قبل وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے قوم سے باران رحمت کے لیے نماز استسقاء ادا کرنے کی اپیل کی تھی۔ امریکہ کی پاکستان میں ہونے والے حالیہ دہشت گردی کے واقعات کی شدید الفاظ میں مذمت۔ امریکی محکمہ خارجہ کے نائب ترجمان نے پریس بریفنگ میں کہا، امریکہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہے۔ علاقائی سلامتی پاکستان اور امریکہ کا مشترکہ مسئلہ ہے۔ 9 نومبر کو کوئٹہ ریلوے اسٹیشن پر حملے کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ امریکہ نے ہمیشہ کھیلوں کی سفارتکاری کو ترجیح دی۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے صدر آصف علی زرداری کے خلاف قتل کی سازش کرنے کے کیس میں سابق وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کو بری کر دیا۔ جوڈیشل مجسٹریٹ یاسر محمود نے سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید کی درخواست بریت پر محفوظ فیصلہ سنایا۔ یاد رہے کہ شیخ رشید کے خلاف تھانہ اپارہ میں 2023 میں مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی بابا گرو نانک کے جنم دن پر دنیا بھر کی سکھ برادری کو مبارکباد۔ اپنے پیغام میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا، بابا گرو نانک ہمیشہ انسانیت، محبت اور اخوت کے علمبردار رہے۔ پرامن معاشرے رواداری اور بھائی چارے کی بنیاد پر قائم ہوتے ہیں۔ بابا گرو نانک نے ایک دوسرے کے دکھ سکھ بانٹنے کی تلقین کی۔ ان کا کہنا تھا، پنجاب کے نادر اقلیتی بہن بھائیوں کے لیے دسمبر میں
माइनॉरिटी कार्ड फाल किया जाएगा। नादरा अक़लियती बहन भाइयों को माइनॉरिटी कार्ड से हर सामाही 10,000 रुपए दिए जाएंगे। अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ को मज़ीद यकीनी बनाएं। कराची के 10 में से 9 बल्दियाती नशिस्तों के गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने 8 नशिस्तों पर मैदान मार लिया। पीपल्स पार्टी 3 चेयरमैन, 1 वाइस चेयरमैन और 4 वार्ड मेंबर्स की नशिस्तें जीत गई। जमात इस्लामी के उम्मीदवार 2 नशिस्तों पर कामयाब। सखर यूसी 29 में चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की नशिस्तें पीपल्स पार्टी के नाम रही। घोटकी और टंडो मोहम्मद खान में भी पीपल्स पार्टी की पोजीशन मुस्तहकम रही। शिकारपुर में यूनियन काउंसिल महमूदाबाद की चेयरमैन की नशिस्त पर JUI का उम्मीदवार कामयाब हो गया। हैदराबाद में भी पीपल्स पार्टी 2 चेयरमैन और 1 वाइस चेयरमैन की नशिस्त हासिल करने में कामयाब। PP उम्मीदवारों की कामयाबी पर जियालों का जश्न। ISPR के मुताबिक हरनाई में शहीद होने वाले मेजर मोहम्मद हसीब की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। 28 साल मेजर मोहम्मद हसीब की नमाज जनाजा चकलाला गैरिजन में अदा की गई। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने नमाज जनाजा में शिरकत की। वफाकी वजीर एहसन इकबाल, सीनियर फौजी अफसरान, सिविल हुकाम, शहीद के लवाहरीन भी शरीक हुए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि हमारे बहादुर अफसरान और जवानों की कुर्बानियां दहशत गर्दी के खिलाफ गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इजहार है। जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि कौम फितना अल खारिज और उनकी बाग दौड़ संभालने वालों के खिलाफ जंग में मुसल्लह अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ है। मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी के साथ मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि तय हुआ था PSDP मुशावरत से बनाई जाएगी। मैं 26वीं तरमीम में मसरूफ था। हुकूमत ने पीठ पीछे कैनाल्स की मंजूरी दी। हम नए कैनाल्स पर इत्तफाक नहीं करते। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि मैं समझता हूँ इत्तफाक राय के मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं। हुकूमत कैनाल्स पर जो तरीका अपना रही है वो ठीक नहीं। बतौर पार्टी चेयरमैन जिम्मेदारी है कि CEC को जमीनी हकाइक से आगाह करूं। उन्होंने कहा कि हालात ऐसे हैं कि सियासी इस्तेकाम आसानी से आ सकता है। पीपल्स पार्टी CEC के ने हुकूमत में शामिल नहीं होना। कानून साजी पर पूरी तरह से मुशावरत होनी चाहिए। PTI पंजाब के रहनुमाओं का अहम इजलास पेशावर में तलब। ज़राए के मुताबिक इजलास आज नमाज जुम्मा के बाद तलब किया गया है। इजलास में मुंतखब अरकान कौमी और सूबाई असम्बली और दीगर रहनुमा शिरकत करेंगे। इजलास की सदारत पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गोहर करेंगे, जबकि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा समेत दीगर रहनुमा भी इजलास में मौजूद होंगे। PTI पंजाब के सदर हमाद अजहर को खुसूसी तौर पर इजलास में शिरकत करने की हिदायत की गई है। इजलास वज़ीर आला हाउस खैबर पख्तूनख्वा में मुनाक़िद होगा। ज़राए का मज़ीद कहना है कि शेख वकास अकरम ने तस्दीक की है कि PTI पंजाब का इजलास आज ज़रूर होगा। पंजाब में इजलास करने में मुश्किलात थी, इसलिए इजलास पेशावर में तलब किया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने स्मोक पर काबू पाने के लिए पंजाब हुकूमत को लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाने की हिदायत कर दी। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक के तदारी के हवाले से दरखास्तों की समाअत की। एडवोकेट जनरल पंजाब खालिद इसहाक खान अदालत पेश हुए। दौरान समाअत एडवोकेट जनरल पंजाब से मुकालमा करते हुए जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स में कहा कि वजीर आला पंजाब जैसे ही वापस आए तो आपको स्मोक पर लॉन्ग टर्म पॉलिसी के हवाले से बात करनी चाहिए। कम से कम 10 साल पॉलिसी बनानी चाहिए। एडवोकेट जनरल पंजाब ने अदालत को बताया कि हमने पंजाब में इलेक्ट्रिक बसें चलाने के लिए बजट मुख्तस कर दिया। अगले साल जून से कबल ये बसें रोड्स पर होंगी। हम फूड सिक्योरिटी के हवाले से इक़दाम भी कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर मनसूबा बंदी और तरक्की एहसन इकबाल ने कहा है कि बलोचिस्तान की तरक्की के लिए सियासी हिकमत अमली अपनाई जा रही है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने गवर्नर बलोचिस्तान जाफर खान मंदोखेल से गुफ्तगू में कहा कि बलोचिस्तान में हंगामी बुनियादों पर 2 बड़े मंसूबे जल्द मुकम्मल किए जाएंगे। N25 को 2 साल में मुकम्मल किया जाएगा। यह शाहराह मिनी मोटरवे की सूरत इख्तियार करेगी। M8 पर भी काम की रफ्तार तेज की जाएगी। यूब से कोयटा तक सड़क को बेहतर बनाया जाएगा। उन्होंने वाज़ेह किया कि इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर मरहलों में होती है। पहले सड़क बनती है, फिर उसे डबल किया जाता है। जब ट्रैफिक बढ़ जाए तो मोटरवे बनती है। जो लोग बलूचिस्तान में मोटरवे न होने की शिकायत करते हैं, उन्हें बताना चाहता हूँ कि कराची से हैदराबाद तक सुपर हाईवे कई सालों तक रही।
सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को 24 घंटों में 63 लाख के जुर्माने किए गए। सीटीओ लाहौर अमारा अतहर ने कहा, वार्निंग और आगाही महमात के बाद अब बस क्रैकडाउन जारी है। ट्रैफिक पुलिस ने 24 घंटों में धुआं छोड़ने वाली 3176 गाड़ियों को 63 लाख के जुर्माने किए। खतरनाक हद तक धुआं छोड़ने पर 15,709 मोटरसाइकिलों को 32 लाख के जुर्माने किए गए। 264 मोटरसाइकिलें और 153 ट्रालियां मुख्तलिफ ट्रैफिक सेक्टर्स में बंद कर दी गईं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम की मदद से भी धुआं छोड़ने वाली 240 व्हीकल्स को ई चालान जारी। शहर में 41 एंटी स्मोक स्क्वाड तश्कील दे दिए गए। लबनान में हिजबुल्लाह के साथ जारी लड़ाई में गुज़श्ता रोज मजीद 6 इस्राएली फौजी मारे गए। इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइली फौज ने गुज़श्ता रोज लबनानी सरहद पर हिजबुल्लाह के साथ लड़ाई में एक कैप्टन समेत 6 इसराइली फौजियों की हलाकत की तस्दीक कर दी है। खबर के मुताबिक इसराइली फौज की जानिब से लबनानी सरहदी इलाकों में जारी कार्रवाइयों में मजीद तोसी करने के ऐलान के बाद ये इसराइली फौज का पहला बड़ा जानी नुकसान है। इसराइली फौज के मुताबिक फौजी एक सरहदी गांव में वाक़ इमारत में कार्रवाई के दौरान हिजबुल्लाह के जंगजुओं के साथ होने वाली झड़प में हलाक हुए और हलाक होने वाले तमाम इसराइली फौजियों का ताल्लुक गोलानी ब्रिगेड से था। और पीसीबी ने गैर मुल्की हेड कोची से छुटकारा हासिल करने की हिकमत अमली बना ली। जराये के मुताबिक रेड बॉल हेड कोच जैसन गैलेस्पी का मुआहदा कबल अज वक्त खत्म करके फारिग कर दिया जाएगा। तीनों फॉर्मेट में पाकिस्तानी हेड कोच के तकर्रुर पर गौर शुरू कर दिया गया। जिम्बाब्वे के दौरे में पाकिस्तानी हेड कोच का तकर्रुर किया जाएगा। पाकिस्तानी हेड कोच के साथ स्पोर्ट्स स्टाफ में बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग कोच गैर मुल्की होने की तजवीज पेश की गई। ताहम जल्द जिम्बाब्वे और जनूबी अफ्रीका के दौरे के लिए व्हाइट बॉल हेड कोच का ऐलान किया जाएगा।